Okay, so we'll move ahead with the screen share. Okay, now see the closure property. So one by one, the closure property we have to introduce here. Closure properties. Now, what is closure property? You must remember. So one by one, we have to define here. That is the first one is a reflexive closure. So the reflexive closure means what? Always remember one thing. For a reflexive closure, let, or we can say that it R let R be a relation. Let R be a relation on a set A, then a smallest, then a smallest reflexive relation, reflexive relation on A is said to be reflexive closure of R. Closure of R if it contains R. R if it contains R. Now, what is a reflexive? If you remember that is a reflexive means you must remember that is A related to A. If I have to define a reflexive only. So once, or we can say that is note. Always remember a smallest reflexive relation R1 containing R can be determined by the formula. We can say that is a reflexive closure. Just R1 is equal to, you have to define like this, delta U, that is a union of R, where this delta is known as diagonal relation. This is, we have to just represent this is diagonal relation. Diagonal relation. Now if R is reflexive relation, then reflexive closure of R is itself. मतलब स्टेटमेंट क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है कि अगर आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो उसका जो क्लोजर होगा, दैट इज अ रिफ्लेक्सिव क्लोजर, वो आर इटसेल्फ खुद होगा. So we can, you must remember this part. So if you remember this part, then it will be helpful for you. Reflexive closure. Now I'm just going to explain the symmetric closure. Now symmetric closure. So always remember R1, that is जो symmetric closure आप बनाओगे, that is equal to R union R raised to minus 1. Now R raised to minus 1 is what? Or inverse of R means what? Suppose if my relation is like A comma B, C comma D, E comma F, ऐसा अगर एक रिलेशन है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका अगर R इनवर्स लिखना है तो इट इज एज सिंपल, दैट इज B comma A, D comma C and F comma E.
you have to write as a inverse format. जो पोजीशन में है, if I say that is A related to B, then its inverse will becomes B related to A. So symmetric closure, reflexive closure के लिए ये पार्ट आप अच्छी तरह से ध्यान में रखो. सिमेट्रिक क्लोजर के लिए ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आर यूनियन आर रेज टू -1, दैट इज द इनवर्स ऑफ आर. सो जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल so that you will understand a better way. Suppose the question is, let r let r be the relation be the relation let r be the relation on A is equal to 1 2 3, sorry, 1 2 3, defined by r is equal to 1 comma 1, 1 comma 2 and 2 comma 3. मैंने ट्रांजिटिव क्लोजर आपको नहीं बताया अभी, सिर्फ दो ही क्लोजर के बारे में डिस्कस किया यहाँ पे, एक रिफ्लेक्सिव एंड द सेकंड वन इज अ सिमेट्रिक. सो वी हैव टू फाइंड, it is a very simple topic, find the reflexive closure of R, and the second one, the symmetric closure of R. So one by one we have to simplify here. Just simplifying this part here, A is equal to 1 2 3 and relation R is given 1 comma 1, 1 comma 2 and 2 comma 3. So you must understand what is a diagonal. For a diagonal relation, for one by one we have to verify. For first I'm just proving that is for reflexive closure. For reflexive closure, that is our main motive is was R is equal to del, that is R1 जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रिफ्लेक्सिव क्लोजर जिसको कहेंगे, you delta union of R. But what is a delta? Delta is means what? That is a diagonal relation. Diagonal relation किसको कहते हैं आप? 1 comma 1, 2 comma 2, because the elements are 1 2 3 and 3 comma 3. जो आपका रिफ्लेक्सिव पेयर होता है उसको आप डायगोनल रिलेशन के नाम से जानते हो. अब यहाँ पे अगर देखोगे आप तो therefore delta is not a subset of R. डेल्टा इज नॉट अ सबसेट ऑफ आर, क्योंकि आर क्या है आपका 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2 एंड 2 कॉमा 3, बट डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2 एंड 3 कॉमा 3. देयरफॉर यहाँ पे अगर देखोगे आप, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला है ये चीज़ कि अगर ये रिफ्लेक्सिव रहेगा तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर उसका आर बाय डिफॉल्ट होएगा. अब ये पार्ट अपना रिफ्लेक्सिव है ही नहीं. वाई? बिकॉज 1 2 3 इज गिवन, ओनली 1 कॉमा 1 इज प्रेजेंट, 2 कॉमा 2 नहीं है, 3 कॉमा 3 है, मतलब डायगोनल जो रिलेशन है वो प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे. देयरफॉर वी हैव टू राइट हियर दैट इज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव. देयरफॉर रिफ्लेक्सिव क्लोजर आपका क्या होएगा? देखो, रिफ्लेक्सिव क्लोजर of R is equal to delta union of R. So you have to write
क्लोजर जो आप कार लिखोगे बहुत सिंपल रहता है क्लोजर लिखना, रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ आर विच इज इक्वल टू डेल्टा आपके पास है, ये पार्ट है तो आप यूनियन सिर्फ अप्लाई करना है 1,1, देन 1,2, देन 2,2, देन 2,3 एंड 3, तो ये आपका क्लोजर आपने लिखा रिफ्लेक्सिव क्लोजर। रिफ्लेक्सिव क्लोजर में वर्क क्या है ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करो, एग्जाम में पूछ सकता है आपको। जो जो भी आपको सेट दिया है और उसका रिलेशन जो भी डिफाइन है, आप हमेशा डेल्टा क्रिएट करोगे। डेल्टा मतलब क्या रहेगा, डायगोनल। डायगोनल मतलब जो रिफ्लेक्सिव पेयर होते हैं वो 1,1, 2,2, 3,3। और फिर आप देखो इसको और इसके साथ रिलेशन को, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ ये देखने के लिए हमको, सॉरी इज नॉट अ सबसेट ऑफ आर। सो ये चीज आप अगर देखोगे, अगर ये सबसेट आपको मिलता है, डेल्टा इज अ सबसेट ऑफ आर, तो जो आपका आर है वही आपका बाय डिफॉल्ट रिफ्लेक्सिव क्लोजर रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, डेल्टा इज नॉट अ सबसेट ऑफ आर, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव क्लोजर जो रहेगा वो आर इज इक्वल टू डेल्टा यूनियन ऑफ आर। डेल्टा जो आपने क्रिएट किया था यूनियन आर, जो रिलेशन आपको दिया है, दोनों को यूनियन सेट की तरह आपको लिखना है सिर्फ। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अ सिमेट्रिक क्लोजर। The second part is symmetric closure. So we have to define a symmetric closure। मैंने आपको बताया था तो लिखने के लिए, that is R is equal to जो भी आपका R1 से रिप्रेजेंट करो या R से, R union R raised to -1। So the R is clearly given, that is, तो मैं यहाँ पे R इनवर्स लिखता हूँ। R इनवर्स इज इसका अपोजिट, तो 1,1 तो बाय डिफॉल्ट सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे आएगा 2,1 and 3,2। We have to define, or you have to take, so symmetric closure symmetric closure of R is equal to R union R raised to -1। So I'm just going to apply here, R is this part, union of with R inverse. So we have to define, so 1,1 by default, 1,2 by default, 2,1 by default, and 2,3 by default, and last one is 3,2। So hope you are clear with the how to write the closure, that is सिमेट्रिक क्लोजर। जो भी आपका आर दिया है उसका इनवर्स निकालो और उसको सिर्फ यूनियन कर दो, दोनों सेट को, दोनों रिलेशंस को यूनियन अप्लाई करोगे, यूनियन रूल अप्लाई करोगे, बाय डिफॉल्ट यू विल गेट द accurate result or symmetric closure। So very simple numericals will become in an examination। Now the next one is a known as a transitive closure। So what is a transitive closure? So for the transitive closure we have to use, that is a, for a calculation of a transitive closure or finding of a transitive closure we must required, there is a for the rule or algorithms, and that algorithm is known as a Warshall algorithm। So for transitive closure calculation or transitive closure finding, we have to solve a Warshall algorithm, and after solving of Warshall algorithm, you will get the transitive closure। So let R be the relation on a set A and R is not transitive, then the smallest transitive relation is said to be transitive closure if it contains R, if it contains, see, just understand the statement, because very easy statement is clearly given. Suppose if R is my any relation on a set A, and if R is a not a transitive, means A related to B, B related to C, and A related to C is not present, then the smallest transitive relation is said to be
transitive closure if it contains relation R. So that relation transitive closure, I'm just define this part. See, or instead of this I have to write with the red. Transitive closure. What is a transitive closure? As we told, if R is a transitive, then transitive closure of R is itself. The first point, you must understand this note. I'm just writing here one by one. If R is transitive, if R is a transitive, then the transitive closure, then the transitive closure then the transitive closure of R is itself. So you remember this first point. Similarly, the second point, transitive closure transitive closure of R is equal to R raised to infinity, and that is known as a connectivity relation. Connectivity relation. C, that is transitive closure of a non-transitive relation. Transitive closure of non-transitive relation can be found by Warshall algorithm. Warshall's algorithm. So we have to learn here that is a Warshall algorithm. Now, as in a first lecture of a relations, I just introduced about how to write a relation in a matrix form. If you remember, you must remember these 3 points. If R is a transitive, अगर R transitive आपको दिया है, if R is a transitive, then the transitive closure is by default R. Means whatever the relation is given. If transitive closure of R is equal to R raised to infinity, then such relations are known as a connectivity relation. Last one is if a transitive closure of a non-transitive relation, means ऐसा relation दिया गया है जो transitive नहीं है, then these things are found by using Warshall algorithm. So I'm just going to introduce about Warshall algorithm, because this algorithm is 101% for 6 marks in an examination. Warshall Warshall algorithm. What is a Warshall algorithms? First you have to use, or we can say that convert the relation in a matrix form. So first we have to convert, suppose the relation, or I'm just going to take one example so that you will understand very well. So just taking the first example here, let A is equal to
let A is equal to 1 2 3 4, and relation R is equal to 1 comma 2, 2 comma 1, 2 comma 2, 4 comma 3, and 3 comma 1. Find the transitive closure. Find the transitive closure of the relation R, of the relation R. So we have to solve according to the given concept or given three notes. First you have to check. First you have to check that transitive pairs are present or not. Where in this relation. So according to relation A related to B related to C, and A related to C. तो अगर यहाँ पे मैं पेयर देखूं A related to B 1 comma 2, 2 comma 2 related to 1, तो फिर हमारा क्या चाहिए 1 related to 1. Just try to understand. 1 related to 2 present है, 2 related to 1 present है, लेकिन 1 related to 1 present नहीं है. Similarly, I can say that 4 related to 3 is there, 3 related to 1 is there, लेकिन 4 related to 1 present नहीं है. Just थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करो. Since 1 related to 2, 2 related to 1 present belongs to that given relation, but 1 comma 1 not belongs to that relation. Therefore the transitive pair is not present here. Similarly, and 4 comma 3, 3 comma 1, देखो A related to B related to C, तो अब नेक्स्ट क्या आना चाहिए A related to C, but belongs to R, but 4 related to 1 is not present. तो यहाँ पे ये रिलेशन नहीं प्रेजेंट है, इसके लिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, द रिलेशन R on A is not transitive. Not transitive. Now the next, we'll move ahead. The Warshall algorithm. So we have to use the Warshall algorithm. So by using Warshall's algorithm, so we have to convert that matrix into, or I'm just writing here, that is consider W0 is equal to R. So W0 is equal to, we have to draw the matrix here. Now see, the matrix is clearly, the relations are given, or the set is 1 2 3 4. So for the better understanding, I'm just writing here 1 1 2 3 4. Similarly here 1 2 3 and 4. Or how to write a matrix form. So 1 2 3 4, see the relation 1 comma 2, 1 comma 1 है क्या, नहीं है. So you have to write 0 by default. Then 1 comma 2, 1 comma 2, 1 comma 2 is there, so you have to write 1.
then 1 comma 3 is not present in a relation, so you have to write 0. 1 comma 4 not present, so you have to write 0. 2 comma 1, yes, 2 comma 1 is present here, so 1. 2 comma 2, yes, so you have to write 1. 2 comma 3 not present, so you have to write 0. 2 comma 4 not present, so 0. Similarly, 3 comma 1, so 3 comma 1 is present here in a given relation. 3 comma 2 not present, so you have to write 0. So 3 comma 3 not present, so 0. 3 comma 4, 3 comma 4 not present, so we have to write as it is 0. 4 comma 1 not present. 4 comma 2 not present. 4 comma 3 present, so we have to write 1, and last 4 comma 4 0. So this is a matrix form of a relation. So hope everyone understand how to write or how to solve a matrix relation, also how to write a relation in a matrix form, because these things are important. Warshall algorithms, 101% you will get a topic or a questions in your examination. That is, you have to find the transitive closure by using Warshall algorithm. So you must understand how to write the relation in a matrix form. So W0 is equal to R. So whatever the R given. अब यहाँ से प्रोसीजर क्या करना है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये चीज़ अच्छी तरह से ध्यान दो. इसलिए मैंने डायरेक्ट सम ही लिया है, क्योंकि थेरोटिकल लिखने से बेहतर है सम सॉल्व करेंगे हम. You have to look, I'm just giving C1. You have to look, that is a C1, मतलब column 1. Yes, C1 are at the position, are at the position, are at the position 2 and 3. फर्स्ट कॉलम देखोगे तो 1 का जो पोजीशन है, ये 1 सेकेंड और थर्ड प्लेस पे है, और रो 1 भी आपको देखना है. R1 1 का पोजीशन 1 is at the position 2 only, the position. तो थोड़ा सा ध्यान दो अच्छी तरह से, क्या करना है आपको. 1 का पोजीशन कॉलम 1 अच्छी तरह से देखोगे और R1 देखोगे, एकदम सिंपल थिंग है, सिंपल वर्क आपको करना है, क्योंकि आप फर्स्ट परफॉर्म कर रहे हो तो W1 आपको नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा, इसलिए आप कॉलम 1 में देखोगे. W0 भी है, इसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स हम लोग डिफाइन करेंगे वो W1 रहेगा. इसके लिए फर्स्ट आप कॉलम 1 में देखोगे, कॉलम 1 में 1 का पोजीशन कितने पे है, सेकेंड और थर्ड पे है, तो 2 एंड 3. और रो 1 में 1 का पोजीशन किधर है, तो ओनली सेकेंड प्लेस पे है, तो यू हैव टू राइट 2 ओनली. So we have to define here. So I'm just writing, we have to insert, we have to insert. देखो अच्छी तरह से 2 कॉमा 2 एक आएगा एंड 3 कॉमा 2. अच्छी तरह से ध्यान दो, 3 कॉमा 2. So we have to write 3 comma 2. So you will getting the next matrix W1. अभी जो है वो सब सेम एज इट इज, लेकिन कुछ पोजीशन आपको अलग मिलेगी. जस्ट लाइक आई एम जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग हियर W1. तो देखो ये 1 कॉमा 1 तो 0 था, तो 0. 1 कॉमा 2 1 था, तो केप्ट एज इट इज 1. 1 कॉमा 3 0, तो 0 एज इट इज. 1 कॉमा 4 0, तो 0 एज इट इज. नाउ 2 कॉमा 1 1 था ऑलरेडी, 1 एज इट इज. 2 कॉमा 2 इधर एज इट इज 1 था, तो यू हैव टू राइट 1. 2 कॉमा 3 0, तो 0 एज इट इज, हियर अगेन 0. 3 कॉमा 1 इज गिवन 1. 3 कॉमा 2 इधर 0 है, लेकिन जैसे ही आपने ये चीज़ देखा तो यहाँ पे 3 कॉमा 2 आपको मिला है. कैसे, इससे सी इन C1 1 एट पोजीशन ऑफ 2 एंड 3, एंड इन R1 1 एट पोजीशन ऑफ 2. सो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे डिफाइन किया है 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3. तो 1
अभी इसको यूज करोगे आप 3,2, तो 3,2 यहाँ पे 0 तो आपने लिखा था, लेकिन यहाँ पे आपको 1 लिखना होगा बिकॉज ऑफ दिस। 3,3 0, 3,4 0, लास्ट रो एज इट इज 4 0 0 1 0। नाउ द नेक्स्ट। तो ये चीज हमको मिला। हम यहाँ पे देखेंगे C2 में नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही हम सॉल्व करते जाएंगे वन बाय वन, दैट इज वी हैव टू लुक इन C2। C2 में अगर देखोगे तो 1 का पोजीशन मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, पोजीशन ऑफ 1, 1 2 एंड 3, ये तीनों पोजीशन पे किसका, पोजीशन ऑफ 1। C2 कॉलम 2 देखोगे आप। सिमिलरली यहाँ पे R2 पे आपका नजर होगा, R2। तो 1 का पोजीशन देखोगे तो 1 कॉमा और 2, 1 और 2 पे होगा किसका पोजीशन, 1 का, पोजीशन ऑफ 1। सो वी हैव टू इंसर्ट, इंसर्ट करना है आपको यहाँ पे 1,1, 1,2, देन 2,1, 2,2, then 3,1, 3,2। So hope things are clear। 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 3,1, 3,2। अभी इसी मैट्रिक्स में इंसर्ट करना है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे W2 से। सो W2 क्वेश्चन अराइज होगा कब तक जाना है हमको, तो अभी आगे आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, जहाँ पे भी पोजीशन स्टॉप हो जाएगा, पोजीशन हमको फर्दर नहीं मिलेगा, वहाँ पे आके आपको स्टॉप करना है। तो सम वंस इट विल कंप्लीटेड, तो ये देखो याद रखो हमेशा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सेट अपना वही था। तो 1,1 इधर 0 है, लेकिन इधर हमको मिला है तो यू हैव टू राइट 1, 1,2 बाय डिफॉल्ट 1 है, 1,3 नहीं है आपके पास तो 0 एज इट इज, 1,4 नहीं है, 0 एज इट इज। नेक्स्ट 2,1, 1 एज इट इज था, 2,2 1 एज इट इज, 2,3 तो यहाँ पे देख लो नहीं है तो केप्ट एज इट इज, 2,4 0 था, फिर 3,1, 3,1 यहाँ पे है 1 है, और यहाँ पे भी 3,1 आपके पास था, तो एज इट इज 3,1, 3,2 भी आपके पास है 1, 3,3 नहीं है तो 0, 3,4 0, फिर 4,1 0 0 1 0, ये पार्ट एज इट इज आपको मिलता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अभी C3 पे आप देखोगे, तो C3 में जैसे ही आपका नज़र जाएगा तो 1 का पोजीशन किस है, 4 पे है, तो आई एम जस्ट राइटिंग 4, पोजीशन ऑफ 1, पोजीशन ऑफ 1। और R4 देखोगे अच्छी तरह से, ये पार्ट, सॉरी R4 बोल रहा हूँ, R3, यू हैव टू लुक एज R3। तो पोजीशन ऑफ 1 कितने पे मिलेगा R3 पे आपको, 1,2, पोजीशन ऑफ 1। फिर से इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, इंसर्ट दैट इज 4,1 एंड 4,2। तो पूरा सेम, खाली 4 मतलब ये पार्ट आपका 4,1 इधर 1 आ जाएगा और 4,2 इधर 1 आ जाएगा, बाकी तो पूरा सेम आने वाला है आपका मैट्रिक्स। सो W3 विच इज इक्वल टू 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4,1, बिकॉज 4 1 तो इधर 1 आएगा, 4,2 इधर भी 1 आएगा, ये 1 ऑलरेडी था, ये आपका 0 रहेगा। अब देखो अच्छी तरह से W3, फिर मैं जैसे ही आगे बढ़ूंगा W3 W4, क्योंकि 4 रो 4 कॉलम है तो आप 4 जाओगे ही लास्ट स्टेप तक, लेकिन आप जैसे यहाँ पे ध्यान दोगे आप लोग,
तो फिर हम लोग C4 पे आएंगे। C4 पे आएंगे तो 1 का पोजीशन देखेंगे, तो फोर्थ पोजीशन पे आपको मिल रहा है 4 पोजीशन ऑफ 1, पोजीशन ऑफ 1। लेकिन R4 जैसे ही आप आओगे, R4 आप पोजीशन आओगे यहाँ पे, तो 1 का पोजीशन आपको क्या मिलेगा, देखो अच्छी तरह से 1 2 3 पोजीशन ऑफ 1। फिर से इंसर्ट यहाँ पे करो, इंसर्ट करोगे आप तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4,1 4,2 4,3। अभी यहाँ पे अच्छी तरह से देखोगे तो 4,1 प्रेजेंट है, 4 कॉमा ये 4 है ना अपना 4, और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4,1 इज देयर, यस। 4,2 इज देयर, यस। 4,3 भी प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है मतलब कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो आपका W3 जो है वो W4 के इक्वल ही आने वाला है। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर that is W3 is equal to W4. W3 is equal to C4 का 1s is 1 0 है। Why? How it is 0 in C? Okay, okay, okay. It was a mistake. C4 हम लोग को नहीं मिला था। Yes. So we have to just look that is it is a 0. So मैंने इसको consider कर लिया। So we have to see. So C4 once, if you see, or we can write, first we have to kept as it is. So the position of 1 C4, yes, we have to see this part. So in C4 if you see there is no one, there is no one at any position, at any position। और R4 में तो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 है, तो जब कोई पोजीशन नहीं है तो कोई भी चीज़ इंसर्ट नहीं होगा। कोई पोजीशन नहीं है 1 का, बिकॉज R4 इफ यू सी दैट इज अ C4, इट वाज माय मिस्टेक, I just saw this part. This is C3 actually. So in C4 there is a no one at any position, मतलब 1 तो कहीं पे प्रेजेंट नहीं है, और R4 में आपके प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ, दोनों पार्ट आपको मिलना चाहिए। अगर C4 और R4 दोनों प्रेजेंट है तो ही आप इंसर्ट कर सकते हो, अगर नहीं है so we are not going to insert anything, so we have to write we will not insert, not insert 1 at any place, at any place। therefore W4 जो आपको मिलेगा, W4 इज इक्वल टू रहेगा W3 के, क्योंकि कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है आपका। therefore finally I'm just writing W4 is equal to, kept as it is, 1 1 1 1, similarly 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0। तो ये पार्ट हमको मिलता है एट द एंड। अभी ट्रांजिटिव क्लोजर आपको फाइंड आउट करने का कहा था, अभी इसको हम लोग रिलेशन से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन ऑफ अ ट्रांजिटिव क्लोजर, रिलेशन ऑफ अ ट्रांजिटिव क्लोजर्स, दैट्स व्हाई रिप्रेजेंट आर टी सी, बेस में है ये टी सी। सो आई हैव टू राइट जस्ट, फिर से एक बार रिप्रेजेंटेशन देखो अच्छी तरह से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो उसके बेसिस पे अच्छे से रिलेशन डिफाइन कर सकते हो। तो 1,1 प्रेजेंट है, फिर 1,2 भी आपको मिला है, 1,3 नहीं है, 1,4 नहीं है। सिमिलरली 2,1 2,2, देन 3,1 3,2, then last one is a 4,1
4,2 एंड 4,3, और ये आपका ट्रांजिटिव क्लोजर मिलता है विच इज a smallest which is the smallest transitive relation containing R, containing R. सो ये हमको रिलेशन मिल जाता है, वेरी इजी सम। ध्यान तो अच्छी तरह से किस तरह किया गया है। वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पार्ट। बहुत सिंपल और इजी न्यूमेरिकल होता है, 6 मार्क्स के लिए आपको पूछा ही जाता है यूनिवर्सिटी पेपर में। सो यू मस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। शुरुआत देखो क्या करना है आपको। आपको एग्जाम में वॉर्शल एल्गोरिथम भी कभी कभी नहीं लिखा रहता है, सिर्फ ऐसा आता है फाइंड द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ द रिलेशन, जैसे यहाँ पे लिखा है। ये तो मैंने ऊपर हेडिंग रखा था इसलिए। Let A is equal to the given set and the relations are given, find the transitive closure of the relation. So since पहले आपका सबसे पहला वर्क है, जैसे ही ट्रांजिटिव क्लोजर आपको कैलकुलेट करना है, the first work is you have to perform, that is you have to check whether the transitive relations are present or not. तो मैंने यहाँ पे चेक किया सबसे पहले 1,2, 2,1, therefore 1,1 आना चाहिए, क्योंकि A वो इक्वल भी हो सकता है आपका। ये चीज़ याद रखो ट्रांजिटिव रिलेशन में। नहीं अगर समझ में आया तो फिर से मैं बोलता हूँ, A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C एंड A रिलेटेड टू C। तो समटाइम्स द एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, इक्वल भी हो सकता है आपको, A और C इक्वल हो सकता है, तो वो रिलेशन प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन 1,1 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो और सेकेंड थिंग 4,3 है एक, और 3,1 है, तो 4,1 भी होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। therefore the relation R on a set A is not transitive। अब ट्रांजिटिव नहीं अगर कोई रिलेशन है तो आप ट्रांजिटिव क्लोजर कैसे फाइंड आउट करोगे? बाय यूजिंग वर्शल एल्गोरिथम। तो जो भी आपका रिलेशन दिया है सबसे पहले उसको W0 से रिप्रेजेंट करोगे, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो 1 2 3 4 सेट दिया था, 1 2 3 4 सेट दिया था, वो लिखा है एज इट इज। फिर रिलेशन है 1,2, तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, दिस मीन्स 1 इंटू 1 मीन्स 1,1 इज देयर, तो 0, वो रिलेशन आपके रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। 1,2 इज देयर, तो 1 लिखा आपने। 1,3 नहीं प्रेजेंट था, 1,4 नहीं प्रेजेंट था। तो जो रिलेशन प्रेजेंट है वहां पे आप 1 लिखोगे, जो रिलेशन प्रेजेंट नहीं है वो आप 0 लिखोगे। फिर उसके बाद आपका प्रोसीजर यहाँ से वॉर्शल एल्गोरिथम चालू हो जाता है। एकदम स्वीट एंड सिंपल प्रोसीजर है, यू हैव टू जस्ट फॉलो स्टेप बाय स्टेप ओनली। जैसे W0 आपको मिल जाता है, W0 और R दोनों सेम होते हैं क्योंकि जो रिलेशन से ही आप W0 डिफाइन करते हो। नेक्स्ट यू हैव टू राइट W1। तो W1 लिखने के लिए आपको W0 के C1 और R1 में देखना है। C1 मीन्स मतलब कॉलम 1 में, और R1 मतलब रो 1 में देखना है। तो क्या देखोगे आप? 1 का पोजीशन। तो अगर W0 पे यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में मैं देखूँ तो 1 का पोजीशन मेरे को सेकेंड और थर्ड पे है, मतलब 2 एंड 3 मैंने लिखा है एज इट इज। और R1 में अगर 1 का पोजीशन देखूंगा तो एट ओनली 2 है। तो वी हैव टू इंसर्ट, कैसे इसको डिफाइन किया है? 2,2 एंड 3,2, उससे डिफाइन किया। अब ये दो वैल्यूज हमको यहाँ पे इंसर्ट करना है। अगर ऑलरेडी ये वैल्यू एग्जिस्ट है तो केप्ट एज इट इज, अगर नहीं है तो वो वैल्यू वहाँ पे आएगा। अब जैसे 2,2 ऑलरेडी इधर प्रेजेंट था तो उसके लिए कुछ मतलब नहीं है, लेकिन 3,2 इज नॉट प्रेजेंटेड। 3,1 खाली प्रेजेंट था यहाँ पे 1, लेकिन 3,2 हमको किससे मिला? C1 और R1 से। तो 3,2 हमने W1 में इंट्रोड्यूस किया। अब W1 आपको मिल गया है, कितने तक आपको जाना है? W4 तक जाना है। क्यों W4 तक जाना है? बिकॉज यू हैव अ 4x4 मैट्रिक्स हियर, रो 1 रो 4 है और कॉलम 4 है आपके, इसके लिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट बेसिस वी हैव टू डिफाइन। फिर W1 हमको मिल गया। W2 कैलकुलेट करने के लिए C2 और R2 आपको ध्यान है। C2 R2 आप ध्यान दोगे, पोजीशन ऑफ 1 R2 पोजीशन देखोगे तो 1 का पोजीशन आपको मिलेगा 1 एंड 2 प्लेस पे, फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस पे मिलेगा R2 में ये पार्ट। फिर से उसी तरह पेयर इंसर्ट करोगे आप 1,1, 1,2, 2,1, 2,2 एंड 3,2, 3,1 एंड 3,2।
फिर से ये पेयर्स देखो 1,1 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, वो चीज़ पुट कर दोगे आप इधर W2 में। 1,2 ऑलरेडी प्रेजेंट था तो कोई मतलब नहीं है, तो जो पेयर्स प्रेजेंट है वो केप्ट एज इट इज, जो नहीं है उनको फिर से इंसर्ट करोगे आप लोग। सिमिलरली W3 कैलकुलेट करने के लिए आपको C3 एंड R3 ऑफ W2 आपको ध्यान देना है, वो ध्यान दोगे तो जिससे आपको 1 का पोजीशन मिल गया। उसको भी सेम सिमिलरली पेयर बना के यहाँ पे देखोगे, C4 पे आओगे तो C4 में एक मिस्टेक हुआ था हमारे साइड से, मैंने C3 आप देख लिया था, तो C4 में अगर देखूंगा तो 1 का पोजीशन ही नहीं है कहीं पे, तो दैट्स व्हाई वी रिटर्न देयर इज अ नो 1 एट एनी पोजीशन, एंड एट R4 वन पोजीशन इज 1 2 3। तो अगर C1 या R1 मतलब कोई कॉलम या रो में 1 का पोजीशन नहीं है तो कुछ इंसर्ट ही नहीं कर सकते हो, मतलब पेयर्स आपके रिलेशंस डिफाइन नहीं होंगे। So that's why we will not insert at one at any position. Therefore W4 और W3 दोनों इक्वल होता है, therefore W is equal to this. At the end आपको क्या करना है, यहाँ पे रिलेशन ऑफ अ ट्रांजिटिव क्लोजर आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, जो भी आपको मैट्रिक्स फॉर्म है उसको रिलेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखोगे। ये पार्ट आपने खाली लिख के इधर छोड़ दोगे, ये नहीं लिखोगे रिलेशन, तो आपका 1 मार्क्स लॉस हो जाता है। तो प्लीज ट्राई टू कंप्लीट ऑल द थिंग्स, सभी चीज़ें आपको डिफाइन करना है प्रॉपर वे से। तो वन बाय वन वी सॉल्व दिस एग्जाम्पल, होप थिंग्स आर क्लियर। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेक वन मोर एग्जाम्पल बिकॉज वी हैव आई थिंक 10 मिनट्स। जस्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं, जितना होता है कंप्लीट उतना। Okay, so the second numerical according to this, a is equal to second example, let a is equal to a1, a2, a3, a4, a5. So there are few elements are given, and the relation on A whose matrix is मैट्रिक्स डायरेक्टली दिया है MR, matrix directly given, that is 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 then 0 1 1 1 0 0 0 0. Last one is a 0 1 0 0 1. So this is a find, we have to find out transitive closure. Find out transitive closure of R using Warshall algorithm. Using Warshall's algorithm. देखो अभी ये क्वेश्चन में क्लियरली बोला है वॉर्शल एल्गोरिथम आपको यूटिलाइज करना है, तो इसमें ट्रांजिटिव पेयर्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रांजिटिव पेयर चेक करो, आप डायरेक्टली आप स्टार्ट करोगे और यू कैन ट्राई दिस एट योर होम। घर पे क्वेश्चन ट्राई करो, बिकॉज आई एम डोंट थिंक दैट इज 8 और 9 मिनट्स में न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा। जो दिया गया है स्क्रीनशॉट ले लो आप, और स्क्रीनशॉट के बेसिस पे आप घर पे इस न्यूमेरिकल को ट्राई करो और देखो, चेक करो कि चेक मतलब करना नहीं है कि चेक करो कि वो सॉल्व होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस नहीं है। वॉर्शल एल्गोरिथम से आपको W5 तक जाके वैल्यू कैलकुलेट करना है, दैट्स सिंपल। पहला W0 आपको डायरेक्टली दिया गया है,
W1 कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में 1 का पोजीशन देखोगे, फर्स्ट कॉलम में 1 का पोजीशन देखोगे तो दिस पार्ट दैट इज 1 और फोर्थ प्लेस पे मिल रहा है 1 और 4। रो में देखोगे तो 1 और 4, तो 1 कॉमा 1 1 कॉमा 4 मिलेगा। सिमिलरली आप वो चीज़ देखोगे तो 4 कॉमा 1 और 4 कॉमा 4 आपको मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट बेसिस यू हैव टू डिफाइन द न्यू और इंसर्ट द वैल्यूज इन W1। W1 कंप्लीट होता है तो फिर आपका पोजीशन बाय डिफॉल्ट आप W2 के बेसिस के लिए जाओगे। W2 पे जाओगे तो कॉलम 2 देखना है आपको और रो 2 देखना है। कॉलम 2 में देखोगे तो 1 का पोजीशन जो भी प्लेस पे आपको मिलता है लाइक दिस और दिस, एंड सिमिलरली हियर दैट इज एट ओनली वन पोजीशन ऑफ R2, तो वहाँ पे जाओगे। फिर W3 पे जाओगे तो कॉलम 3 कॉलम 4 सॉरी W3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको, तो C3 एंड वी कैन से दैट इज R3 पे देखोगे। सिमिलरली आपको अप टू W5 तक कैलकुलेट करना है। जहाँ पे भी ज़ीरो आता है, जैसे 1 का पोजीशन ज़ीरो आता है कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो C3 में 1 का पोजीशन ही नहीं है, दैट इज़ ज़ीरो। और यहाँ पे देखोगे तो R3 में है तो kept as it is, ज़ीरो नहीं है तो देयर इज़ नो। तो जो भी आपका उसके पहले W2 है तो W2 और W3 दोनों यहाँ पे इक्वल मिलेंगे आपको। W3 और W2 दोनों इक्वल मिलते हैं आपको। तो जो भी जैसे मिलता है तो फिर नेक्स्ट पोजीशन पे आप W4 कैलकुलेट, W4 में कॉलम 4 देखोगे और यहाँ पे देखोगे R4 तो 1 का पोजीशन मिलता है तो यू हैव टू राइट और इंसर्ट द वैल्यूज। सिमिलरली W5 के लिए आप देखोगे तो इधर R कॉलम 5 एंड R5 वैल्यूज देखो, इंसर्ट करो, न्यू वैल्यूज जो भी आती हैं उसको इंसर्ट करो प्रॉपरली और लास्ट में ट्रांजिटिव क्लोजर आपको डिफाइन करना है। जैसे यहाँ पे रिलेशन डिफाइन करोगे, रिलेशन जैसे हम डिफाइन करने जाते हैं R, तो आर अभी यहाँ पे रिलेशन क्या दिया गया है देखो, A1 कॉमा A1 दिया गया है, A1 कॉमा A1 है क्योंकि 1 का पोजीशन है। A1 कॉमा A2 नहीं है तो A1 कॉमा A3 है, A1 कॉमा A4 दिया गया है आपको। फिर आप इस पार्ट पे आओगे तो A2 कॉमा A2 आपको दिया गया है। फिर आप नेक्स्ट देखोगे तो A3 कॉमा A3 आपको दिया है और A3 कॉमा A4 आपके पास है ये पार्ट। नेक्स्ट यहाँ पे आओगे तो A4 कॉमा A1 दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो A1 A2 A3 A4 A5 है। सॉरी ये मिस्टेक हुआ है थोड़ा मेरे से लिखने में, तो ठीक है 5 है टोटल, तो 5 के बेसिस पे हम लोग जाएंगे। देखो A1 कॉमा A4 हो गया हमारा। नेक्स्ट वन इज A2 कॉमा A2, नेक्स्ट A3 कॉमा A4 और A3 कॉमा A5 है। मैंने उसको A3 कॉमा A3 लिखा था क्योंकि ये फोर्थ है ये फिफ्थ है। नेक्स्ट वन इज A4 कॉमा A1 और कुछ नहीं है, और लास्ट आपका है A5 कॉमा A2 और A5 कॉमा A5। तो ऐसा रिलेशन दिया गया है, इसको आप अच्छी तरह से देखो। A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है एंड A5। सिमिलरली A1 A2 A3 A4 एंड A5। तो रिलेशन A1 कॉमा A1, A1 कॉमा A2 नहीं है, A1 कॉमा A3 नहीं है, A1 कॉमा A4 है, A2 कॉमा A2 सिर्फ है, A3 कॉमा A4 है और A3 कॉमा A5 है, वही चीज़ हमने रहा है। A4 कॉमा A1 है सिर्फ, बाकी कोई वैल्यूज़ नहीं है। A5 कॉमा A2 है और A5 कॉमा A5 है। तो रिलेशनशिप यही है आपका दिया गया है। लास्ट में भी जब ट्रांजिटिव क्लोजर लिखोगे तो इसी फॉर्मेट में निकला। 1 का पोजीशन देखना नहीं है, ऐसा गड़बड़ करना। 1 का पोजीशन जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जैसे W0 या W1, 1 का पोजीशन हम लोग जब लिखने जाते हैं जैसे C1 और R1 में हम लोग लिखेंगे, तो 1 का पोजीशन जैसे आप लिखोगे यहाँ पे, तो 1 का पोजीशन एक A1 पे आएगा और दूसरा 1 का पोजीशन आएगा A4 पे, पोजीशन ऑफ 1। नंबर्स दे दोगे तो भी चलेगा, A1 A2 A3 A4 को 1 2 3 4 और सॉल्व करो पोजीशन ऑफ 1। सिमिलरली R1 पे अगर देखोगे तो 1 का पोजीशन सेम वैसे ही मिल रहा है,
A1 एंड A4 पे ही मिल रहा है, पोजीशन ऑफ 1। तो A1 इंटू A1 होगा, A1 इंटू A4 होगा, A4 इंटू A1 होगा, A4 इंटू A4 होगा। तो उस बेसिस पे आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। सो होप थिंग्स आर क्लियर, किस तरह आपको करना है, प्रॉपर वे से जाओगे आप लोग, उस तरह से सॉल्व करना। Now we'll move ahead with attendance, and if anyone having any doubts, you can ask me right now, so I can explain. Only 85 students are present in our lectures. Just wait for the. I'm going to take the attendance because it is a mandatory. Anyone having any doubts, you can ask me, or I'm going to just stop the presenting this part. Till now, not taken any attendance because I have to stop the presenting, else it is also counted as a one member in the attendance. So now 83 students are present. Just to wait one more time, I'm going to refresh and take the attendance. Wait. Now, if anyone having any doubts, you can ask right now, or